Hello everyone, now again welcome to video lecture class. Today I am going to talk about the topic that is structure of MIS and school mapping at secondary level. The particular topic related to MEd semester 3 paper number 9B, that is secondary and senior secondary education. मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ एमएड सेमेस्टर 3 के अंतर्गत पेपर नंबर 9B सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी एजुकेशन में यूनिट 3 के अंतर्गत स्ट्रक्चर ऑफ एमआईएस यानी एमआईएस की संरचना और विद्यालय के मानचित्रण के बारे में। एमआईएस दैट मीन्स मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, it is most important for collecting the data of the school. डाटा संग्रह करने का एक अच्छा साधन, एक अच्छा आधार है। जैसा कि हम जानते हैं, विद्यालय को सुव्यवस्थित तरीके से चलाना यह अति महत्वपूर्ण कार्य होता है। एमआईएस के द्वारा डाटा का कलेक्शन करके विद्यालय को सुव्यवस्थित तरीके से संचालित किया जा सकता है। राष्ट्रीय स्तर पर या राजकीय स्तर पर डाटा के द्वारा विद्यालय की क्या स्थिति, विद्यालय में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जानकारी एकत्र करके उसे सुव्यवस्थित कर सकते हैं। साथ ही साथ स्कूल की मैपिंग यानी विद्यालय के मानचित्रण के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। मानचित्रण यानी स्कूल मैपिंग, दैट मीन्स स्पेशली एट द ब्लॉक और पंचायत लेवल एंड ऑल्सो एट द स्टेट लेवल। NUEPA, that means NUPA, play a significant role and also play as a nodal agency in this process. Now, अब मैं आपको और इसे विस्तार से बताने जा रहा हूँ। Now, again welcome to video lecture class MEd semester 3 paper 9B secondary and higher secondary education. Mapping of secondary schooling provisions and creation of secondary education management information system SEMIS. Number 1. First, undertaking detailed mapping of secondary schooling provision, course mapping and streamlining the secondary education database is of paramount importance for universalization of access and improvement of quality at this stage, right from the preparatory stage. Second point, in order to initiate a comprehensive school mapping exercise at secondary and higher secondary level, it is necessary to develop a reliable database, that is creation of secondary education management information system with disaggregated data at the state, district, block and school levels. Next point, National University of Education Planning and Administration NUPA will act as a nodal agency for the SEMIS. The NUPA and state governments would undertake the necessary exercise right from the preparatory stage. Management structure of secondary level. First point, there will be school management and development committee for secondary and higher secondary stage. This committee will be responsible for the activities including planning, collection of data under SEMIS, implementation, monitoring, evaluation and taking corrective remedial action on all the components interventions of this scheme, infrastructural as well as academic and others at the school level. Second point, the committee will maintain all the relevant records for recurring as well as non-recurring expenditure. These records will be updated on regular basis and placed before the committee in every meeting. These records and progress on each component interventions of the scheme will also be placed in the meeting of panchayat / urban local bodies.
Number third, the academic committee will be responsible for all academic activities, including planning, management, monitoring, supervision, reporting, and collection of the data for ACMIS, etc. Number four, the academic committee will be responsible for ensuring quality improvement, equity, reducing barriers like socioeconomic, gender and disability, teachers and students attendance, recommending teachers for training, guidance and counseling, students achievement, co-curricular and extracurricular activities, and overall academic and personality development of students and teachers. Now, number fifth, a comprehensive secondary education monitoring and information system ACMIS will be developed by the Ministry of Human Resource Development to facilitate monitoring. A national online monitoring system for key performance indicators will be evolved. Number six, all program implementation authorities from the head master principal to the district and state level shall report regularly on this system. National University of Education Planning and Administration NUPA will act as nodal agency for the ACMIS. मैं अब इन सभी बातों को थोड़ा हिंदी में स्पष्ट कर दूं। माध्यमिक विद्यालय के प्रावधान का मानचित्रण और माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण। सर्वप्रथम हमें MIS के जो स्ट्रक्चर है उसके पूर्व उसका प्रावधान क्या है और कैसे निर्माण होता है उसके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करें। माध्यमिक शिक्षा प्रावधान की विस्तृत मानचित्रण करना, माध्यमिक शिक्षा पाठ्यक्रम की डेटाबेस का मानचित्रण और सुव्यवस्थित करना सर्वोपरि है। इस स्तर पर सार्वभौमिकरण के महत्व और गुणवत्ता के सुधार और उपयोग के लिए तैयारी सही है। एक व्यापक स्कूल मैपिंग यानी विद्यालय मैपिंग या विद्यालय मानचित्रण आरंभ करने के लिए माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर पर एक विश्वसनीय डेटा विकसित करना आवश्यक है। अर्थात माध्यमिक शिक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली का निर्माण ACMIS राज्य, जिला, ब्लॉक और स्कूल स्तर पर अलग अलग डेटा के साथ तैयार करना आवश्यक है। शैक्षिक योजना और प्रशासन के राष्ट्रीय विश्वविद्यालय न्यूपा ACMIS के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। न्यूपा और राज्य सरकारें तैयारी के चरण से ही आवश्यक अभ्यास शुरू कर देती हैं। स्कूल स्तर पर प्रबंधन संरचना। माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक चरण के लिए स्कूल प्रबंधन और विकास समिति होगी। यह समिति ACMIS कार्यान्वयन योजना के अंतर्गत डेटा एकत्र करने, योजना बनाने सहित गतिविधियां सभी घटकों पर निगरानी, मूल्यांकन और सुधारात्मक उपचारात्मक कार्रवाई करना और योजना के हस्तक्षेप अवसर संरचनात्मक और साथ ही साथ शैक्षणिक और अन्य पर स्कूल स्तर तक सभी के लिए जिम्मेदार होगी। यह रिकॉर्ड नियमित आधार पर अपडेट किए जाएंगे और हर बैठक में समिति के सामने रखा जाएगा। यह रिकॉर्ड पंचायत, शहरी, स्थानीय निकाय और प्रत्येक स्तर पर प्रगति योजना के घटक हस्तक्षेप को भी बैठकों में रखा जाएगा। नंबर 2, शैक्षणिक समिति सभी योजना प्रबंधन, निगरानी, पर्यवेक्षण, रिपोर्टिंग और सहित ACMIS आदि के लिए डाटा का संग्रह शैक्षणिक गतिविधियों के लिए जिम्मेदार होगी। नंबर 3, शैक्षणिक समिति गुणवत्ता में सुधार, इक्विटी यानी न्याय जिसको कहते हैं, सुनिश्चित करने के लिए बाधाओं को कम करना और जैसे सामाजिक, आर्थिक, लिंग और विकलांगता, शिक्षकों और छात्रों की उपस्थिति, शिक्षकों की सिफारिश, प्रशिक्षण, मार्गदर्शन और परामर्श, छात्रों की उपलब्धियों, सहपाठ्यक्रम और अतिरिक्त के लिए छात्रों के सभी शैक्षणिक और व्यक्तित्व विकास पर पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां और शिक्षक जिम्मेदार होंगे। एक व्यापक माध्यमिक शिक्षा निगरानी और निगरानी की सुविधा के लिए विकास सूचना सिस्टम मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा विकसित किया जाएगा। प्रमुख प्रदर्शन संकेतकों के लिए एक राष्ट्रीय ऑनलाइन निगरानी प्रणाली भी विकसित की जाएगी। सभी कार्यक्रम कार्यान्वयन पदाधिकारियों, हेडमास्टर या प्रधानाचार्य से लेकर जिला और राज्य स्तर तक इस प्रणाली पर नियमित रूप से रिपोर्ट करेंगे। नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन न्यूपा ACMIS के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। इस प्रकार से मैंने उसके प्रोविज़न जो प्रावधान थे और जो संरचना थी सेकेंडरी लेवल पर उसके बारे में बात की। अगले क्लास में
ACMIS यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से संबंधित चीज़ों के बारे में बात करेंगे, उसकी संरचना, साथ ही साथ स्कूल मैपिंग के मानचित्रण के बारे में भी बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।